Assalamualaikum, my dear class 5. How are you all? I hope you all are doing good and enjoying your holidays. I am Ms. Anzila Arshad, and today I'm going to introduce you some interesting activities regarding workbook. So as you know, we were doing unit number 2 and we are going to complete this chapter today. Just rest of the 2 activities are left. So let's see what will happen. Okay, let's just start with this slide. It's a kind of paragraph writing, and the topic which I have given to you is why I love summer vacations. आप सब जानते हैं कि आप लोगों को जब हॉलीडेज़ समर वेकेशंस होती हैं, समर हॉलीडेज़ होती हैं तो आपको कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी साथ दी जाती हैं. सो यू जस्ट हैव टू राइट सम काइंड ऑफ पैराग्राफ which will contain 15 to 20 lines. And what you have to write and what you have to discuss, I have shared some key points with you. That first of all, you just have to write some introductory lines. What are the summer vacations? And discuss something about summer season. And after that, just tell some characteristics of summer season, that what the summer season actually is. After that, mention your holiday month, कि आपको कितने months की छुट्टियाँ होती हैं. And then you have to write that why the holidays are given to you. आपको holidays क्यों दी जाती हैं? Because summers के अंदर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से हमारा जो hydration level है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. So we just have to stay in our homes to do the rest of our work. And then you have to discuss that how do you feel when you are on vacation. आपको कैसा feel होता है जब आपको छुट्टियाँ हो जाती हैं. What are your plans, what all the things are running in your mind. You have to discuss that thing in the paragraph. And what kind of dressing do you like during summer? It's a very important point that आपको जब छुट्टियाँ होती हैं तो आप किस तरह की dressing पसंद करते हैं. Most of the students like to wear very light kind of dresses, very cool colors. और जैसे पेंट्स हो गई, शर्ट्स पहन लेते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो फ्रॉक्स पहन लेती हैं. तो समर वेकेशंस की जो ड्रेसिंग होती है दैट मैटर्स अ लॉट. एंड देन यू हैव टू डिस्कस दैट डू यू हैव डू अ फन विद योर स्कूल फ्रेंड्स ड्यूरिंग हॉलीडेज़. क्या होता है कि आपको 2 to 3 months की हॉलीडेज़ होती हैं, उस दौरान पता नहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं कि नहीं. तो यू जस्ट हैव टू शेयर योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग योर meet up with your friends during their holidays. Then you have to discuss, have you ever visited Sozo Water Park or any kind of beach during summer vacations? Sozo Water Park was one of my best place during summer vacations. हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते थे. I didn't visit beach, लेकिन हम सोज़ो वाटर पार्क बहुत enjoy किया हुआ है. तो have you people enjoyed that or not? You have to share your point of view regarding this too. एंड टेल योर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़. जब आपको हॉलीडेज़ होती हैं तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आप क्या गेम्स खेलते हैं, क्या आप अपनी कह सकते हैं कि आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं. आइदर यू जस्ट वेंट गो टू योर खालाज और आंटीज़ हाउस और प्ले देयर विद योर कज़न्स. यू ऑल हैव टू शेयर योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दिस. And then you have to discuss something creative about your routine. Summer vacations में definitely आपने अब early in the morning नहीं उठना होता. आपकी routine क्या हो जाती है आपने वो share करना है. And at last share your views about your favorite place which you visit during the holidays with your family. जब आपको holidays होती हैं तो आप अपनी family के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं, especially आपकी favorite जगह क्या है summer holidays के दौरान, वो आपने मेरे साथ share करनी है. And try to write just very few lines regarding 15 to 20 lines for this paragraph. Okay, so just take out your books and it's page number 18 of your workbook, Broadway workbook, page number 18, learn grammar. So my dear little students, today we are going to deal with past continuous tense kind of structure. As I told you about the structure of past tense, that what past tense is. And there are another type of past tense which is known as past continuous tense. Past continuous tense, as I just want to tell you that continuation is the thing जो आपकी past में रहती हो, past में जारी हो. जिस तरह मैं उस वक्त ये काम कर रही थी, I was doing that word on that time. ठीक है, इस तरह के जो sentences हैं वो आपने इसको deal करना है. But first we have to learn that what past tense actually is. So just look at this slide. It is very little complex, but it is understandable.
First of all, just read the definition of past continuous tense, that this tense is used for the action that continued to happen before or after certain time in the past. जो बेटा आपकी बात या आपकी कोई एक्टिविटी जो पास्ट में बात की जा रही हो लेकिन वो आप एक कॉन्टिन्यूएशन के साथ बता रहे हों, जैसे आप एक स्टोरी बता रहे हैं कि मैं खाला के घर गई थी और मैंने वहाँ पर खाना पकाया था, मैंने वहाँ पे अपनी कज़न्स के साथ एंजॉय किया था, तो यू आर जस्ट टेलिंग अ स्टोरी ना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि आप पास्ट की बात बता रहे हो लेकिन पास्ट में रहते हुए आप अपनी कॉन्टिन्यूएशंस बता रहे हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस बेटा एक जैसे माजी की कोई बात की गई, उसने घंटी बजाई, उसने मुझे गिफ्ट दिया या तोहफ़ा दिया, उसने शोर मचाया, ठीक है। इन दिस पास्ट सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, मैंने दरख्त से छलांग लगाई। शी वेंट टू द मार्केट, वो बाज़ार गई, ठीक है। वी जस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट द पास्ट। आफ्टर दैट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला गिवन है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ती है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज एंड वर होता है। अब वॉज किसके साथ आता है और वर किसके साथ आता है? जो वॉज है इट कम विद द सिंगुलर नाउन्स ही, शी, इट एंड आई। इनके साथ आप वर्ड नहीं लगा सकते बिकॉज दे आर द सिंगुलर नाउन। और वर्ड जो होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स के लिए आता है, और जिस तरह वी, यू एंड दे, ठीक है। तो वॉज एंड वर्ड का कन्फ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। शी वॉज रनिंग, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। शी वर रनिंग, इट्स रॉन्ग बिकॉज वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए आता है एंड शी इज़ अ सिंगुलर वन। उसके बाद है दे वॉज ईटिंग चिप्स, दे वॉज ईटिंग चिप्स, इट्स रॉन्ग। दे वर ईटिंग चिप्स, इट्स राइट। दे जो है वो प्लूरल फॉर्म है, तो वी जस्ट हैव टू यूज़ वर्ड विद अ प्लूरल वन। Okay, so now there is an exercise on page number 18 and I have just marked the answers from 3 to 9 and the rest of the sentences will be done by you. So it's a kind of story. I will just read it out for you and you have to complete it by your own. So the filling the blanks using a correct form of verb given in brackets. The first two have been done for you. First two sentences जो हैं वो आपके हो चुके हुए हैं और बाकी 3 से ऑनवर्ड 9 तक मैं आपको बताऊंगी एंड फ्रॉम 10 टू ऑनवर्ड 14 आपने खुद करना है। ओके, आई वाज स्टडिंग फॉर माय साइंस एग्ज़ाम इन माय रूम व्हेन आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। मैं अपने कमरे में साइंस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जैसे ही मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, ठीक है। आई वाज गेटिंग अप आ सकता है कि आई गॉट अप। आई थिंक यहाँ पे आई गॉट अप आना चाहिए क्योंकि इट्स अ सिंपल टेंस। आई गॉट अप टू सी व्हाट इट वाज। The noise came, yeah, the noise was coming from. The noise was coming from outside the window. I opened the window. I opened, मैंने window खोली, ठीक है। I opened the window and looked out, और मैंने बाहर देखा। I was opening the window and I was looking out। ये इतना suitable नहीं है, यहाँ पे आपने past tense यूज़ करना है, simple past tense, कि मैंने विंडो खोली, खिड़की खोली और मैंने बाहर देखा। I opened the window and looked out. It was a little kitten on the tree next to my window. एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा था जो कि मेरी खिड़की के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। It dashed softly, mew. It was mewing softly भी आ सकता है and it mewed softly भी आ सकता है। वो मैं म्याऊ 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 कर रहा था या मैंने उसको म्याऊ म्याऊ करते सुना। ये आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। It dashed to get down from the tree. It was trying to get down from the tree भी आ सकता है, या it tried to get down from the tree भी आ सकता है। So I went outside to help it. I was going outside is not suitable, so you just have to write the second form of go, and the second form of go is go, went, gone. So you just have to write, so I went outside for the help. So dear students, I will just stop here right now, and from sentence number 10 to onward 14 will be done by you. Okay, do it and I will check it out. And just look at this slide. It's your homework. It's a kind of letter writing. अब इस लेटर राइटिंग का जो बैकग्राउंड आपने बताना है, वो बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि ऑन थर्ड संडे ऑफ जून, जब जून का महीना आता है, देयर इज़ अ थर्ड संडे, और थर्ड संडे जो होता है वो फादर्स डे होता है।
ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने बाबा के साथ, बाबा के लिए वो दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो दिन होता है वो हम अपने फादर्स को ऑनर देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि आपने हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, तो वी आर सेलिब्रेटिंग अ डे फॉर यू। ठीक है, तो आपने उनके अपने फादर के लिए एक लेटर लिखना है और वो लेटर बहुत ही सफिस्टिकेटेड सा होना चाहिए और बहुत ही लवली होना चाहिए, जिसके अंदर आप एक लाइन से स्टार्ट करेंगे दैट आई होप यू विल बी इन योर गुड हेल्थ, and you just have to start your own words, writing your own words. I will check it out, I will help you out there. If you need my help, I will definitely be there for you. So you just have to go through all this. Best of luck. I will just keep an eye on you. Allah Hafiz.